اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ رشتہ کہاں سے ملے گا؟ کیا ایک گھر میں دو بہنیں نہیں بیاہی جا سکتی؟ ماشاء اللہ، گھر کا لڑکا ہے ابرار۔ ابرار؟ آپا نے چمبے سے ساس کی جانب دیکھا۔ ان کے پتنگ باز، کبوتر باز عاشق دیور کا رشتہ ان کی ڈاکٹر بہن کے لیے؟ ان کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ رحم انصاف طلب نگاہ میاں پر ڈالی، مگر وہ پہلو بدل کر اخبار دیکھنے لگے۔ میرے ولید کا پیچھا چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا تھا، اس سے کہیں میرا پیچھا چھوڑ دے۔ اس نے ہاتھ باندھے۔ امی؟ ولید آگے آیا۔ ولید کو ادھر دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہونے لگا۔ جھپٹ کر بڑھی، عروسہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ امی، امی یہ کیا طریقہ ہے؟ پیچھے سے ولید نے سنبھالا۔ تجھے تو گھر جا کے بتاؤں گی۔ پوری طاقت سے انہوں نے عروسہ کے بالوں کو جھٹکے دیے اور اسے دیوار سے دے مارا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ باہر گیٹ پر لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ پھپھو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہتک آمیز انداز، کفر تولتے لفظ، پرتحقیر لہجہ، اف، لوگوں کی نظریں۔ السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے زندگی کی نوید ہو تم۔ اگر یہ ناول آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم اتنی دور جاؤ گی اور ہاسٹل میں رہو گی؟ وہاں کا ماحول کیسا ہوگا اس کی خبر ہے تمہیں؟ بڑی آپا تو اس کی بات سن کر دم بخود تھی، جبکہ نائلہ آپی حسب معمول چیخ پڑی تھی۔ میرا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا تو میں کیا کروں؟ اپنی دونوں بہنوں کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ سنو عروسہ، تمہارا تبادلہ رک نہیں سکتا کیا؟ بڑی آپا نے پہلی بار ان کی گفتگو میں حصہ لیا۔ آپا کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ میں ایک معمولی سی ڈاکٹر۔ عروسہ نے زچ ہو جانے والے انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر نوکری چھوڑ دو۔ نائلہ آپی نے اپنی طرف سے آسان حل پیش کیا۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ اتنی محنت کیا میں نے اس لیے کی ہے کہ منزل پر پہنچ کر سب کچھ کھو دوں؟ ابا کے خواب، اماں کے ارمان۔ آخر میں اس کا لہجہ روحان سا ہونے لگا۔ پھر ہم جوان لڑکی کو کس طرح سے اتنی دور بھیج سکتے ہیں کوئٹہ؟ اکیلی لڑکی، کون ذمہ دار ہوگا تمہارا؟ کون ساتھ جائے گا؟ پھر ہم لوگ اپنے سسرال میں کیا جواب دیں گے؟ نائلہ آپی نے برہم سے انداز میں اسے دیکھا۔ آپا جاب میں یہی ہوتا ہے، کسی کا کہیں بھی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اتنی سی بات کوئی نہیں سمجھ سکے گا کیا؟ اور کسی بھی جگہ رہنے کے لیے ہاسٹل موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنی تسلی کر لیں، ساتھ چلیں میرے، تفریح بھی ہو جائے گی اور تسلی بھی۔ عروسہ نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ تم کوئٹہ جانے پر اتنی بضید کیوں ہو؟ نائلہ آپی نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ آپی، انسان کو ترقی کا کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مستقبل کی پلاننگ میں مجھے اپنا ذاتی کلینک بنانا ہے، پھر اسے اسپتال کے درجے پر پہنچانا ہے، اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے، اور مجھے اتنا اماؤنٹ جمع کرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جدی پشتی رئیس ہوتے ہیں جو اسپتال بناتے ہیں، یا مشہور لوگ جو چندہ لے کر تعمیر کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ تم اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے ڈاکٹر بنی ہو، ورنہ ہم سفید پوش گھرانے اتنی مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے۔ بڑی آپا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہم تنہا تمہیں اتنی دور کیسے بھیج دیں؟ تنہا؟ زمانہ بہت خراب ہے۔ میں کہتی ہوں آپا، جب ہم اپنی ذات میں ٹھیک ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ تم ہماری اجازت کے بغیر من مانی کرو گی؟ بڑی آپا نے اسے دیکھا۔ آپا آپ بھی تو میری بات سمجھیں، مجھے ترقی کا چانس ملا ہے۔ 2 سال 3 سال میں اتنا کر لوں گی کہ اپنا کلینک تو بنا ہی لوں گی، اور ہم لوگ اپنے سسرال والوں کو کیا جواب دیں گے؟ نائلہ آپی نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں میچور ہوں، ڈاکٹر ہوں، اپنا اچھا برا سب سمجھتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ بات ڈر کی نہیں بیٹا، ان اعتراضات کی ہے جو تمہارے جانے پر اٹھیں گے۔ ہم کس کس کو مطمئن کریں گے؟ ہمارا گھر اتنا قریب ہے، پھر بھی ہمیں سننا پڑتا ہے۔ ہائے عروسہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہے، کیسے رہتی ہے؟ عروسہ لب بھینچ کر انہیں دیکھتی رہی۔ وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی، اور اسے جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ فون کی بیل پر عروسہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ بڑی آپا اور نائلہ آپی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال ہونے لگے۔
یہ دونوں بہنیں ایک ساتھ کبھی کبھی ہی آتی تھیں، مگر اس بار مسئلہ ایسا تھا کہ دونوں کو ایک ساتھ آنا پڑا، بلکہ شاید اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1-2 دن رہنا بھی پڑ جاتا تھا۔ عروسہ ضدی نہیں تھی مگر ضد کر رہی تھی۔ اس کا ٹرانسفر کوئٹہ کے کسی اسپتال میں ہوا تھا۔ اس کے انچارج فاروقی صاحب نے اسی آفر پرکشش تنخواہ اور اضافی میرات کے ساتھ کی تھی۔ اپنا ذاتی کلینک بنانا اس کا خواب تھا، اور وہ اس پیشکش کو کسی بھی صورت مسترد کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ابا کا شوق تھا ان کا کوئی بچہ ڈاکٹر بنے۔ عروسہ ان کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ 3 ہی بیٹیاں تھیں جنہیں انتہائی لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ بیٹا کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے دامادوں کو ہی بیٹا سمجھا تھا۔ بڑی بیٹی عقیلہ کو بہن کے گھر بیاہا تھا، اور چھوٹی بیٹی نائلہ کو سالی کے گھر۔ حمید اور ریاض دونوں نے بیٹا بن کر دکھا بھی دیا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کر دی تھی۔ 2 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اماں اکیلی رہ گئیں۔ دونوں ماں بیٹی کا ساتھ غنیمت تھا۔ اماں کی خواہش تھی کہ گھر کا ڈاکٹر ان کا علاج کرے۔ عروسہ نے ان کا خوب علاج کیا۔ اسے مکمل ڈاکٹر بنا دیکھ کر ان کا ڈھیر و خون بڑھ گیا تھا۔ جوڑوں کے درد اور شوگر نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا اور عروسہ تنہا رہ گئی۔ پھپھو اور خالہ دونوں نے کہا کہ مکان کرائے پر اٹھا کر ان کے ہاں آ کر رہے، مگر اس کی آنا نے گوارا نہیں کیا۔ 100 کیلے نیچے کے پورشن میں ماسی زیتون کے ساتھ رہتی تھی۔ پتھر اپنی جگہ ہی بھاری ہوتا، یہ اس کا موقف تھا۔ یہ اس کی دعا تھی۔ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے جو ہی ہاؤس جاب مکمل کیا، اسے گورنمنٹ سروس مل گئی۔ حالانکہ نوکری کے لیے اتنی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کتنی رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر نیا پار لگتی ہے، مگر اسے بنا کسی جد و جہد کی جاب مل گئی۔ شام میں وہ ایک پرائیویٹ کلینک پر بیٹھتی تھی۔ یوں وقت گزر رہا تھا کہ اچانک یہ مشکل وقت آن پڑا۔ اس کا ٹرانسفر کوئٹہ ہو گیا، اور بڑی آپا کسی صورت بھی اسے تنہا بھیجنے پر تیار نہیں تھی۔ دونوں بہنوں کا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا۔ رات کو حمید بھائی اور نائلہ کے شوہر ریاض بھی آ گئے۔ نہیں، میرا خیال ہے امی اور ریاض کی امی کسی صورت نہیں مانیں گی کہ عروسہ اتنی دور اکیلی جائے۔ حمید نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر چائے پیتے ہوئے کہا۔ بس میں نہیں جانتی، ان کو منانا آپ کا کام ہے۔ وہ لاٹ سے ٹھنکی۔ آپ لوگوں کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ اس نے فردن فردن سب کو دیکھا۔ تم پر بھروسہ ہے عروسہ، مگر اس زمانے پر، اس معاشرے پر نہیں ہے۔ تنہا لڑکی کو جانے کیا سمجھ لیتے ہیں، بڑی آپا نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ پھر آپ سب لوگ چلیں میرے ساتھ، خفگی سے کہہ کر اس نے برتن سمیٹے اور باہر نکل گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ حمید بھائی نے ریاض کی جانب دیکھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، امی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، انہوں نے اخبار رکھتے ہوئے کہا۔ عروسہ اتنی پڑھی لکھی، سمجھدار، باشعور ہے، اعتراض کی کوئی گنجائش تو نہیں نکلتی، مگر آگے وہ سب لوگ جانتے تھے مسئلہ بڑوں کا تھا، انہوں نے کبھی بھی اتنی دور نہیں بھیجنا تھا۔ ٹھیک ہے، امی سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، حمید بھائی نے کہا۔ ہاں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، سب نے ان کی تائید کی۔ بڑی آپا کی ساس یعنی پھپھو تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ غضب خدا کا، اکیلی جوان لڑکی کو اتنی دور بھیج دیں، دماغ خراب ہے کیا؟ بجائے اس کے کہ اس کا منہ بند کرتے میرے پاس آ گئے ہو تم لوگ۔ امی، اس کی جاب بہت اچھی ہے، حمید بھائی نے کہا، لیکن دنیا میں اچھے لوگ کم اور برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کا اعتراض بھی بجا تھا۔ ہم نے اتنی دور اپنی لڑکی کو نہیں بھیجنا، اور اس کی شادی کی فکر کرو، میاں کے ساتھ جہاں مرضی جاتی پھرے، تیکھے لہجے میں کہا۔ شادی؟ بڑی آپا نے شوہر کی جانب دیکھا، انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا غضب کا مشورہ تھا، شادی ہو جاتی، جہاں مرضی جاتی میاں کے ساتھ۔ واقعی اس کی عمر بھی شادی کی تھی۔ مگر امی، اتنی جلدی منگنی تو ہو سکتی ہے، مگر شادی، رشتہ کہاں سے ملے گا؟ کیا ایک گھر میں 2 بہنیں نہیں بیاہی جا سکتی؟ ماشاء اللہ، گھر کا لڑکا ہے ابرار۔ ابرار؟ آپا نے چنبے سے ساس کی جانب دیکھا۔ ان کے پتنگ باز، کبوتر باز عاشق دیور کا رشتہ ان کی ڈاکٹر بہن کے لیے؟ ان کے تو چھکے چھوٹ گئے۔ رحم و انصاف طلب نگاہ میاں پر ڈالی، پہلو بدل کر اخبار دیکھنے لگے۔ پھر گھر کی بات ہے، دیکھا بھالا ہے، نوکری بھی مل ہی جائے گی۔ دونوں کی جوڑی بھی اچھی ہے، خاندان میں اس ٹکر کی جوڑی نہیں۔ اماں، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ساس کو فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتے دیکھ کر خود کو سنبھالا۔ یہ تو عروسہ کی مرضی سے ہوگا۔ اے بہو، انہوں نے چشمہ سنبھال کر ٹھوڑی پر انگلیاں ٹکائیں، تمہاری اور نائلہ کی دفعہ تمہارے بابا نے کسی سے پوچھا تھا؟
तुम से मशवरा लिया था जो तुम इससे मशवरा लोगी, और जब तुमने इसे मशवरा ही लेना है हमारे पास क्या लेने आई हो? वो तो फिर फैसला कर चुकी होगी जाने का। उन्होंने नाराज़ी से रुख मोड़कर पानदान की जांच पड़ताल शुरू कर दी। नहीं अम्मा, फैसला हमारा होगा जाने के लिए, मैं तो सिर्फ। ए बहू, जाओ तुम, जो मर्ज़ी करो, एक तरह से इनकार ही कर रही हो। उन्होंने तीखे चतोन बहू पर डाले। अम्मा, इसकी शादी का फ़ैसला मैं इसे पूछे बगैर कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर है वो, इसकी मर्ज़ी हो। और इब्रार, हाँ हाँ, निखट्टू है मेरा बेटा, कह दो इस साल 14 जमातें पास कर ली हैं, नौकरी भी मिल ही जाएगी, फिर शादी हो जाएगी। तो क्या अरूसा अपने शौहर को कारोबार नहीं कराएगी? अच्छी नौकरियां मिलती ही कहाँ हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। बड़ी आपा का दिल चाहा मुंह फाड़ कर पूछें, किस चीज़ का तजर्बा है बरखुरदार इब्रार अहमद के पास सिवाय इश्क के? मगर अदब लिहाज माने था। उन्होंने तिरछी निगाह मियाँ पर डाली। वो रुख मोड़े मुताले में मसरूफ़ थे। और माँ क्या प्लानिंग कर रही थी, कतई नहीं, इम्पॉसिबल। उन्होंने दिल में अहद किया और कुछ देर की खामोशी के बाद वहाँ से उठ गईं। कमोबेश यही सूरत-ए-हाल नाइला के घर में भी थी। खाला तो सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई। बेटे बहू को बुरा भला कहा, फिर इसकी शादी की ऑफ़र रखी, मगर रिश्ता कहाँ से आएगा? बहू, रिश्ता घर का है, क्या बुराई है खावर में? आज मामूली जॉब है, कल को इससे बेहतर भी मिल जाएगी। तरक्की के चांस तो मिलते ही रहते हैं। हाँ, नाइला जलकर खाक हो गई। तरक्की के चांस, तरक्की के चांस भी इसे मिलते हैं जिसमें तरक्की करने का जज्बा हो। वो तो पिछले 4 साल से मुस्तकिल मिजाजी से डाक खाने में क्लर्क की सीट पर बराजमान है। इनके तो हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खाला जान, खावर और अरूसा का कोई जोड़ नहीं है। उनकी आदतें, ख़यालात, मशागिल यकसर मुख्तलिफ हैं, और मैं बेजोड़ शादी के ख़िलाफ़ हूँ। नाइला को बड़ी आपा की तरह लगी लिपटी रखनी नहीं आती थी और ना ही इसमें मुरव्वत थी। जो बात गलत है इसे मुंह पर कह दो, यही बात थी। नाइला के दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा थे। लो और सुनो, उन्होंने दुपट्टा संभाला। घर का रिश्ता है, ख़ानदान में ये सब नहीं देखा जाता। अच्छे शरीफ रिश्ते मिलते कहाँ हैं? ठीक है, बात अगर ख़ानदान की है तो फिर हुस्ना फुप्पो से बात करें, अपने इंजीनियर बेटे का रिश्ता ले आएं। जोड़ भी है और जॉब भी अच्छी है, फिर ख़ानदान का है। नाइला ज़रा गर्म मिजाज की थी। इसने साफ बात कर दी। सास की आग ही लग गई। मेरा बेटा बुरा है क्या? क्या बुराई है इसमें? आप खुद समझदार हैं। ज़िद होकर उन्हें देखा। नाइला, खावर अरूसा को पसंद करता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। तुम अरूसा को समझाओ। खाला ने नर्म रवैया इख्तियार किया। मुकाबिल डॉक्टर भांजी थी, ये रिश्ता हो जाता तो इनके बेटे के भाग खुल जाते। अच्छा, मैं ख़ुद बात करूँगी अरूसा से, मुझे घर ले चलना। उठकर बाहर निकल गई और इसने सर हाथों में थाम लिया। दोनों बहनें सर पकड़े बैठी थीं। खाला और फुप्पो ने समझा कर भेजा था कि अरूसा को हर हाल में इस रिश्ते के लिए राज़ी करना है। अरूसा के ट्रांसफ़र ने तो एक झगड़ा खड़ा कर दिया है। अरूसा भी अस्पताल से आई नहीं थी, वो भी अस्पताल से आई नहीं थी। क्या करें आपा? करेंगे क्या? जो फ़ैसला शादी के सिलसिले में अरूसा करेगी वही करेंगे। जानते बूझते से जहन्नुम में तो नहीं धकेल सकते ना। इब्रार ना खावर, कोई इसके लायक नहीं है। आती है तो बात करते हैं। उन्होंने चाय का कप होंठों से लगा लिया। वैसे भी इब्रार और खावर दोनों के लिए ही कमाऊ बीवी चाहिए। ना इब्रार नौकरी करेगा और ना खावर क्लर्की से आगे बढ़ेगा। और शादी के बाद सिर्फ अखराजात को ही ज़र्ब दिया जाता है। अखराजात से अपने निखट्टू बेटों के लिए इन्हें हमारी बहन ही नज़र आती है। नाइला ने साफ कोई से कहा। इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी कमाते कमाते। बड़ी आपा ने ताइद में सर हिलाया। क्या? अरूसा ने हैरान होते हुए सब सुना। इसका मुंह खुले का खुला रह गया। तुम बेफिक्र हो अरूसा, होगा वही जो तुम चाहोगी। ज़िंदगी तुमने गुजारनी है और तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। मेरा ख़्याल है कि मुझे दोनों से शादी करना पड़ेगी। इसने हैरत पर काबू पाकर कमाल इत्मीनान से कहा। क्या पागल हो गई हो भी सकती हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। खावर भाई के लिए इनकार किया तो खाला जान ने आप ही को नहीं छोड़ना। इब्रार भाई के लिए इनकार किया तो बड़ी आपा की शामत। वो ज़ुमाइनी अंदाज में मुस्कुराई। बड़ी आपा और नाइला एक दूसरे को देख कर रह गईं। इस अहम नुक्ते की जानिब तो उन्होंने गौर ही नहीं किया था। कितनी ज़हीन है उनकी बहन। फिर अब क्या किया जाए? दोनों को नई फ़िक्र लाहक हो गई। फ़िलहाल मुझे सुकून से जाने दें, जब यह मरहला आएगा तो ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। वैसे भी जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। और रोसा ने ज़ुमाइनी अंदाज में उन्हें देखा।
तुम्हारे ट्रांसफ़र नहीं तो ये मसला उठाया है, इससे पहले पढ़ रही थी। फिर हाउस जॉब, फिर नौकरी नहीं है, अब ट्रांसफ़र। मेरा ख्याल है अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। नाइला आपी ने पूरा तज्जिया बयान किया। ठीक है, आप लोग देखें रिश्ता, मुझे कहीं कोई एतराज़ नहीं है। मैं आप दोनों को खुश व खुर्रम और खुशहाल देखना चाहती हूँ, इसलिए इब्रार भाई और खावर भाई के लिए खलूस से दिल से इनकार। खुश असलूबी से इसने निखट्टू, आराम तलब, काहिल कज़न्स के लिए इनकार कर दिया। दोनों बहनें एक दूसरे को देख कर रह गईं। आप ये बताइए कि क्या हुआ मेरे जाने का? यही तो मसला है। फुप्पो कह रही हैं कि अकेली लड़की कहीं नहीं जाएगी, इसकी शादी करके भेजो। और शादी के लिए? नाइला आपी, शादी है कोई अकीक़ा या सालगिरह नहीं। नहीं, शादी नहीं, कम अज़ कम निकाह। कुछ भी नहीं। अरूसा को गुस्सा आ गया। आप लोगों को मुझ पर एतमाद करना चाहिए आपा, मैं सब कुछ आप लोगों पर छोड़ रही हूँ। मुझे शानदार स्टेटस चाहिए, और शानदार स्टेटस के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ती है। हो सकता है मैं शादी ही ना करूँ। आइंदा चंद सालों तक तो इसका इम्कान ही नहीं। इसने साफ कोई से दिल की बात कहती। अरूसा, माशरे में इज़्ज़त के लिए ख़ानदान की पहचान ज़रूरी होती है। वो सब तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, और हम लोगों की राय भी यही है कि तुम्हारा तन्हा जाना ठीक नहीं है। तुम्हारी शादी, आप ही अकेले ना जाने के चक्कर में मैं आवारा लफंगों से शादी कर लूँ? है कोई रिश्ता आपकी नज़र में? इसने आईना दिखाया। तुम अपना ट्रांसफ़र रुकवा लो। नाइला आपी ने मशवरा दिया। इम्पॉसिबल, इतनी शानदार जॉब मैं नहीं छोड़ सकती। फिर इसका हल? मासी को मेरे साथ भेज दें, वो तो तुम्हारे साथ ही जाएगी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। फिर मसला क्या है? यहाँ भी तो मैं अकेली रहती हूँ। वो ज़िद हो गई। यहाँ हम लोग करीब हैं, पुराना मोहल्ला है, आते जाते तुम्हारी खबर रहती है। वहाँ इतनी दूर कैसा माहौल हो, सेहत, बीमारी, घरदारी। अरूसा ने सर हाथों में थाम लिया। बड़ी आपा ने नाइला को इशारा किया और बाहर निकल गई। नाइला उठकर उनके करीब बैठ गई। अरूसा, नाराज़ी की ज़रूरत नहीं, बड़ों की बात दुरुस्त भी है और माकूल भी। इसका एक हल और है। क्या? बेख्तियार सर उठाए। वलीद से शादी? अरूसा सुन्न हो गई। यकटक नाइला आपी को देखे गई। तुम्हारी खातिर वलीद ने शादी न करने का फ़ैसला किया है। मैं उससे बात करती हूँ कि आपी? इसका सर झुक गया। ऐसा मत करें, जो दरवाजे बंद हो जाएं उन पर दस्तक नहीं देनी चाहिए। इज़्ज़त नहीं रहती, और ना ही ज़बरदस्ती दिलों में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। अरूसा, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। एक नई ज़िंदगी की इब्तदा तो होती है। और बेशक आपी, एक नई ज़िंदगी की इब्तदा होती है, मगर रिश्ते पुराने रहते हैं। पुराने रिश्तों ने मुझे ठुकरा दिया है, फिर महज एक शख्स की ज़िद की वजह से। अरूसा एक टक उनकी शक्ल देखने लगी। नाइला आपी ने निगाह चुरा ली। हुस्ना फुप्पो ने वकार का रिश्ता भी तय कर दिया है। आपी, जिस गांव जाना ही नहीं, उसके कोस क्या गिनना। जहां मेरा नसीब होगा मिल जाएगा। यूँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, ये रिश्ते ऐसे तय नहीं होते। इसने रसान से उन्हें समझाने की कोशिश की, जो आज शायद ये तय करके आई थी कि किसी न किसी के लिए अरूसा से हाँ करवा ही लेंगी। लेकिन वो इज़्ज़त और ज़िल्लत के एहसास से आशना थी। बेशक वलीद के नाम पर दिल भी धड़का था और वजूद में इल्ताश भी हुआ था, मगर जज्बे इतने अर्ज़ां भी नहीं होते कि इन्हें बेमोल कर दिया जाए। ज़िंदगी से जज्बात को निकाल दिया जाए तो फिर रह ही क्या जाता है। वो गुलशन फुप्पो की हतक आमेज़ गुफ्तगू नहीं भूली थी, फिर कैसे वो इस घर जाने की बात करती। बेशक वलीद से कल्बी रिश्ता था, मगर इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैंने सुना है तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। वो अस्पताल के कॉरिडोर में बहुत मसरूफ़ से अंदाज में जा रही थी। अगले मोड़ से अचानक वलीद निकला और इसके साथ चलने लगा। इसने बेहद हैरानी से इसे देखा। इतने अरसे बाद यूँ अचानक हार्ट बीट मिस हुई, और ये इसने बात क्या की है। कदम रुक गए। ढूंढने की क्या ज़रूरत है आखिर? मैं गहरी संजीदगी से इसे देखता सीने पर हाथ बांधकर इसके सामने खड़ा हो गया। बरसरे रोज़गार, खुश शक्ल, ख़ानदानी, नेक किरदार, दिल का सवाल और खलूस का गालिब है। मोहब्बत से मशरूत है, रिश्ता कबूल है। वलीद, इसके अंदाज़ और लहजे पर बामुश्किल ख़ुद को संभाला। अस्पताल है, ये घर नहीं। लंच आवर है, चलो कैफ़े में बैठते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। निगाह इस पर मुल्तकिस थी। अरूसा ने निगाह चुरा ली। आज भी वही अंदाज़, वही लहजा, वही अदा। एक और स्कैंडल मैं अफोर्ड नहीं कर सकती वलीद। वैसे भी मैं लंच घर से लेकर आती हूँ और अपने रूम में बैठकर करती हूँ। घर पर तुम मिलती नहीं हो। लहजे में शिकवा था।
प्लीज़ जाओ वलीद, मुझे एक मरीज़ की केस हिस्ट्री पर काम करना है। ठीक है, फारिग हो जाओ तो आ जाना, मैं नीचे वेटिंग रूम में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वलीद एड़ियों पर घूम गया और अरूसा के बढ़ते कदम रुक गए। वो अपनी बात पर कायम रहता था। आज इसने ज़रूर बात करनी थी। ऐसा ही ज़िद्दी और खुदसर था, बैठा रहता उधर इंतज़ार में। सुनो, बोलो। लोग आ जा रहे थे और वो साइड पर हो गई। फ़तह हमेशा हक की होती है, वो सरशारी से बोल। इसके मुकाबिल दीवार से टेक लगा ली। कहो। मैंने बस सुना है तुम्हारा रिश्ता ढूंढा जा रहा है, इसीलिए मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे हजूर असर नौ पेश कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आखिरी वोट तुम्हारा ही होगा। वो संजीदा था। इसने गहरी संजीदा नज़र वलीद पर डाली। सीने पर हाथ बांधे मुअद्दब खड़ा उसके जवाब का मुंतज़िर था। वलीद, तुम जानते हो कि? हाँ, मैं जानता हूँ कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब तो एक तलवार निकल चुकी है। लब भींच कर इसे देखा। हर बात का जवाब होता है इसके पास। आधी ज़िंदगी घर वालों के साथ और आधी ज़िंदगी घर वाले के साथ गुजरती है। जब गुलशन फुप्पो मुझे पसंद ही नहीं करती, रक्षंदा बाजी और हाजरा भी मुझे नापसंद करती हैं, तो ज़बरदस्ती किस तरह से रिश्ते के बंधन बांधे जा सकते हैं? क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं? गुंजाइश? इसकी आवाज़ भर्रा गई। वो तो ऐसा था कि ज़िंदगी इसके नाम कर दी जाए, और गुंजाइश? वलीद अब्बू की ज़िंदगी के बाद तमाम रिश्ते फुप्पो ने ख़त्म कर दिए हैं। 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। बकौल फुप्पो, जिस लाइन में मैं हूँ वहाँ तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। तुम नहीं और सही, एक नहीं दूसरा सही। मैं अपनी ज़िंदगी बद्दुआओं के साए से शुरू नहीं करना चाहती। फुप्पो दिल से राज़ी हूँ तो ठीक है, वरना मुझे कोई मिल ही जाएगा। ज़िंदगी का सफ़र कभी रुकता है भला? इसने निगाह उठाई और कमाल हिम्मत से तमाम आंसुओं को अंदर उतार लिया। शफ़ाफ़ आँखों में वलीद का ही अक्स झिलमिला रहा था, और मैं दिल के तमाम तर जज्बे आँखों से आया थे। तुम? मुस्कुराकर निगाह चुराई। मैंने तो सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई और वकास भाई के साथ तुम्हारी शादी तय है। अस्पताल की बदबू सूंघ सूंघ कर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। मेरी शादी वकास भाई के साथ कैसे हो सकती है? मैं कोई लड़की हूँ? वलीद ने जेबों में हाथ डालते हुए इसे देखा। और सुन लो तुम, उंगली उठाकर वार्निंग दी। जिस पर मेरा दिल आएगा मैं उससे शादी करूँगा। जिसको मोहब्बत दूंगा वही मेरी सेज सजाएगी, वरना मैयत पर तो सभी आते हैं। वलीद, इसका दिल दहला। अगर तुम सराते मुस्तकीम पर चल सकती हो, मैं भी बड़ा मुस्तकिल मिजाज बंदा हूँ। कंवारों की भी तो मौत होती है। शादी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं। अगर दिल ना माने तो? वो तो तुम्हारा मसला था। तुम्हारा ट्रांसफ़र इतनी दूर हो गया और तुम तन्हा लड़की, इसलिए तुम्हारी मदद का ख्याल आ गया, वरना मैं। इसने झटके से कॉलर झाड़े। चुपचाप इसकी बात सुनती सर झुकाए धीरे धीरे जूते को फर्श पर रगड़ते हुए सोच रही थी, ये तो आज भी वैसा ही है। मगर जल्दी से सर को झटका। दिल को अब खुशबुओं के सफ़र पर गामज़न नहीं करना, और तुम्हारी मदद मेरे अलावा कोई कर भी नहीं सकता, और मैं हर ऐरे गैरे को घास भी नहीं डालता। तुम्हारा शुक्रिया। संजीदा निगाह की शौक़ी को छुपा लिया। मगर मुझे मदद नहीं चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, मोहब्बत के साथ। और मेरे पास वक्त कम है। खुदा हाफिज़। वो जाने के लिए मुड़ गई। ए सुनो, रुको। वलीद पीछे भागा। प्लीज़ वलीद, जाओ तुम। जो काम हो नहीं सकता इसे ज़बरदस्ती मत करो। सुनो पागल लड़की, इंसान को अपने लिए भी जीना पड़ता है, और अपनी खुशियों के लिए भी तो इंसान खुदगर्ज हो सकता है ना। मुझे अपना एतबार देता हूँ, मैं तुम्हारा मान बन जाऊँगा। वो बड़ी आस और उम्मीद से दिल का कासा लिए खड़ा था, और अरूसा जज्बों पर बंद बांध चुकी थी। जहाँ बाप की ज़िल्लत हुई थी, दुख ने मौत से हमकिनार किया था, वहाँ अपनी खुशियों की छत कैसे तामीर करे? वलीद फुप्पो राज़ी हो जाए तो आ जाना। इसके बाद वो रुकी नहीं। जालिम, संगदिल लड़की। पीछे से वो चीखा, और आगे बढ़ते हुए इसके आंसू कदमों में रुलते जा रहे थे, जो पीछे आने वालों के लिए ज़्यादा राह थे। तो तुम ज़रूर जाओगी? नाइला आपी इसे पैकिंग करते देख रही थी। तो क्या करूं, जाना ही है मुझे। वो संजीदा थी। तुम जानती हो तुम लड़की हो और तन्हा। नाइला आपी, लड़की होना मेरे लिए जुर्म है क्या? मैं इसके लिए किसी भी नत्थो खैरे से शादी कर लूं? हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, मगर तुम्हारी हिफाजत। 3 माह बाद वापस आऊँगी, फिर देखेंगे। अभी मुझे जाने दें। अरूसा, लड़कियों की इज्जत कांच जैसी होती है। हल्की सी इज्जत, हल्का सा बाल इसे दागदार कर देता है। और तुम?
आप ही मैं इस दौर से गुजार आई हूँ। थके हुए अंदाज से बेड पर गिरी। गुलशन फुप्पो ने मुझे कहाँ कहाँ बदनाम नहीं किया। क्या इज्जत रह गई। हम भूल जाते हैं, ख़ानदान वाले और लोग नहीं भूलते। इस बात को 4 साल हो गए हैं, मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ। हम लोग तुम्हारे किरदार के ज़ामिन हैं अरोसा। मगर अचंभे के अंदाज में इन्हें देखा। उसकी छठी हिस्स बेदार हो गई। मगर हमें भी अपने ससुराल में रहना है, भले ससुराल खाल और फुप्पो का घर क्यों ना हो। ससुराल तो ससुराल है। और तुम अकेली ज़ात यूँ तन्हा जाकर हमें ससुराल वालों की नज़रों में। उनकी आंखें भीगने लगीं। आप ही दम बखुद से अरोसा उनके सामने थी। आप रो रही हैं। आंसू हथेलियों पर समेटे। हम लोगों का कोई भाई नहीं है अरोसा। हम लोग कितने मजबूत हो जाएं, रहेंगे औरत ही। औरत कितनी ही मजबूत हो जाए, बहरहाल है तो नाजुक फूल। इसकी हिफाजत सिर्फ मर्द का नाम उसका साहिबान कर सकता है। तुमने तन्हा इस घर की दहलीज पार कर ली तो। नायला आपी ने दुपट्टे से चेहरा साफ किया और वो सुन बैठी रह गई। तो तुम वलीद की बात मान लो। नायला आपी ने सर उठाया और वो ढह सी गई। इसके दिल के आपगीनों को किसी ने रगड़ मसल कर फेंक दिया था। आप ही वक्त बहुत बदल गया है। इन नज़ाकत और बारीकियों को देखें जो इस रिश्ते में हाइल हैं। एक शख्स की मोहब्बत के लिए 10 अफराद की नफ़रत ऐसा हूँ। वो तुम्हें अलग घर में रखेगा। एक माँ का दिल दुखाऊं, ये उनकी खुद साख्ता ज़िद है रोसा। बाद में वो ठीक हो जाएंगी। आप ही एकदम ही खामोशी से इसने नायला का जायज़ा लिया। वलीद आया था। उन्होंने निगाह चुरा ली। हाँ, अब सारे सवाल बेकार थे। उसने तकिए पर सर रखकर आंखें मूंद ली। नायला ने इसे देखा। उनकी मासूम नाजुक सी बहन जो ज़माने की गर्दिश में आ गई थी। अरोसा, आप ही वो मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। क्या है मेरे पास, कितनी बदनामियाँ सहूँ मैं इसके नाम पर। उसका हाथ थाम कर सब जिल्लतों पर सच्चाई की मोहर लगा दूँ। धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, नायला ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अपनी ज़िंदगी के लिए खुद गर्ज बन जाओ। वो तुम्हें तमाम नाकामियों से बचा लेगा। वो कह रहा है कि मेरे नाम की बदनामियां हैं, मैं ही इसे मोहब्बत से समेटूंगा। वो मेरी ज़िंदगी को आजमाइश बनाना चाहता है। वो उठ बैठी। तो मुझे मंजूर है। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मगर अभी नहीं, 3 माह बाद इससे कहिएगा कि बारात लेकर आ जाए। इसके बाद वो रुकी नहीं और कमरे से बाहर निकल गई। नायला चुप बैठी रह गई। खुश हों या दुखी, मिली जुली कैफियत थी। अगले दिन वो अस्पताल से आई तो घर में गैर मामूली शोर व हंगामे ने इसका इस्तकबाल किया। लाउंज में खाला और फुप्पो दोनों मौजूद थीं। उनके तेवर दूर से ही ख़तरनाक लग रहे थे। रियाज भाई, हमीद भाई भी मौजूद थे। जल तो जलाल तो, आई बला को टाल तो, इसका वेद करती अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों बहनोइयों की जानिब से जवाब आया। आओ बीबी। फुप्पो ने तीखे तेवरों से इसे देखा। कैसी हैं फुप्पो आप। उनके करीब बैठ गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, ये क्या हंगामा आराई की है। हंगामा आराई कैसी फुप्पो, ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे। मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो जवान जहान लड़की को कैसे भेजते हैं, कुछ अकल है या नहीं। तो फिर आप लोग साथ चलें। कौन किसी के लिए अपना घर बार छोड़कर जाता है। तुम सुध-बुध वाली हो। हम तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं, शादी करो और जाओ। शादी तो फुप्पो अभी नहीं, कम से कम 2 साल तो बिल्कुल नहीं। वो मजबूती से बोली। अकेली लड़की, तन्हा ज़ात, कल कलां को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे अम्मा बाबा को। तीखे तेवरों से जायज़ा लिया। और क्या ख़राबी है खावर में, नौकरी तो मिल ही जाती है। इसने गहरा सांस लिया। ख़ानदान नहीं मिलते। तुम्हारे साथ जो हो चुका है, गैरों में जाओगी तो 100 तरह के सवाल जवाब होंगे। अपने तो पर्दा ढकते हैं, ठंडी छाँव होती है। पूछ लो बहन से, कभी जो गैर समझाओ। खाला ने अपना केस लड़ना शुरू किया। खाला, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मेरे बड़े हैं, आपका फ़ैसला आखिरी होगा। मगर इब्रार भाई और खावर भाई के लिए इसलिए इनकार है कि मुझे अपनी दोनों बहनें अजीज़ हैं। खाला और फुप्पो दोनों के दिल बुरे नहीं करना चाहती। बहनोइयों की मौजूदगी में झिझक माने थी। संभल कर कह दिया। लाउंज में एकदम खामोशी फैल गई। इसका इतराज़ बिल्कुल बजा था। और जहाँ आप चाहें, मुझे इनकार नहीं। बीबी, रिश्ता बेरी का दरख्त तो नहीं, पत्थर मारो और एक रिश्ता मन पसंद उतार कर संभाल लो। हमने तो तुम्हें एक राह दिखाई है, आगे तुम्हारा नसीब। वैसे भी जब लड़की बाहर निकल जाए तो इसके पल निकल आते हैं। सोच लेना, ख़ानदान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और तुम्हारी फुप्पो गुलशन तीली लगाने में माहिर, तुम्हारा जीना हराम कर देंगी।
आखिर वलीद, फुप्पो। इसने गहरा सांस लिया। गुलशन फुप्पो की भतीजी हूँ मैं, सगी ना सही हूँ तो भतीजी। अब मुझे अपना ज़र्फ़ और उनकी इंतहा देखनी है। हाँ, खाला ने सर झटक दिया। नागवारी फुप्पो के चेहरे से आया थी। खाला और फुप्पो की मौजूदगी में हमीद भाई, रियाज भाई लाताल्लुकी अख्तियार किए हुए थे। बड़ी आपा और नाइला आपी अपना फरीज़ा अदा कर चुकी थी। फुप्पो, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, हॉस्टल में रहने की सहूलत है, मासी मेरे साथ है, हर हफ्ते मैं फ़ोन करूँगी और मेरी आदत आप जानती हैं। इसने खाला का हाथ थाम लिया। बीबी हो तो तुम ज़िद्दी, हम फिर भी तुम्हारा हाथ मांग रहे थे, मगर मनमानी तुम्हें बाप से विरसे में मिली है। इसने सर झुका लिया। यही अंदाज़ फुप्पो का भी था। ये सोच कर जाना, अब अच्छे बुरे की जिम्मेदार तुम खुद हो कि हमें किसी मामले में मत लाना। हमारा जो फ़र्ज़ था अदा कर दिया। खाला ने पान की गिलोरी मुंह में डाली और बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गईं। उनका दिल दुख गया। फुप्पो ने रुख मोड़ लिया। वक्त के बहाव पर इसकी ज़िंदगी की नैया डोलने के लिए तैयार खड़ी थी। कुछ दुख हमारे नसीब का करिश्मा होते हैं, उनसे पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश की जाए मगर साथ साथ चलते हैं। माँ बाप और भाई की कदर क्या होती है, कोई इसके दिल से पूछता। काश काश उस शब भी वो तकिए में मुँह छुपाकर सिसक उठी। मैंने तो तुम्हारे हवाले से क्या क्या ख्वाब देख लिए थे, और तुम? वो जो अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी, दरवाजे में इस्तादा इब्रार को देखकर ठिठक गई। दीवार से टेक लगाए, सीने पर हाथ बांधे, मुंह में पान, सुर्ख अंगारा आँखें, इसने मुंह फेर लिया। इब्रार भाई, हकीकत की दुनिया में आ जाएं, ख्वाब शराब होते हैं। हम इतने बुरे भी नहीं थे। बात बुरे की नहीं है इब्रार भाई, किस्मत के सितारे नहीं मिलते। इस्तेज़ाइया हंसी उभरी। किस्मत तो मेरे दाएं हाथ में है, तुम इकरार तो करो। अभी तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें सुहागन बना दूँ। अपनी चौड़ी भद्दी हथेली फैलाई। नाखनों में मैल फंसा हुआ था, उंगलियों में लाल नीली चौड़ी चौड़ी अंगूठियाँ, मैले से कपड़े। अरूसा को कराहियत महसूस होने लगी। मुझे देर हो रही है इब्रार भाई, जो रास्ते हमारी मंजिल की जानिब नहीं जाते, इन रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो रुकी नहीं, बाहर निकल गई। मशहूर कुन परफ्यूम और टैल्कम की खुशबू इब्रार की सांसों से टकराई। बड़ा ही वालहाना अंदाज था। अंदर तक अरूसा का वजूद घिन से भर गया। तुमको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, अरूसा को गुस्सा आ गया। टेलीफोन की बेल मुसलसल हो रही थी। बैग बंद करके इसने फ़ोन उठाया। हेलो। शुक्रिया आस उम्मीद के जुगनू भेजने का। वो एकदम चौंकी। इस आवाज़ को तो लाखों में पहचान सकती थी। वलीद, ज़ेरे लब कहा, बारात के लिए 3 माह का वक्फ़ा क्यों दिया? आज अभी इसी वक्त भी तो निकाह हो सकता था। वलीद, मेरी ज़िंदगी संगरेज़ों की हम सफ़र है। मैं अपना सब्र, तुम्हारी इंतहा और फुप्पो का चलन देखूंगी। जब ज़िंदगी आजमाइशी ठहरी तो एक और आजमाइश सही। बहुत जालिम हो, अपने साथ भी जुल्म और मेरे साथ भी। वलीद, मेरी ज़िंदगी ठहर गई थी, मुझे सब्र भी आ गया था। कुदरत को अभी मेरी आजमाइश मकसूद है। अगर मेरा नसीब तुम्हारे साथ है तो फिर बदनामियों के साथ भी तुम्हारा रफ़ीक ठहरेगा। इसका अंदाज़ बहुत तल्ख था। मेरी ज़िंदगी का तल्ख दौर कल से शुरू हो चुका है। अरूसा, हमारे दरमियान खुशबुएँ भी तो हैं। इसका लहजा धीमा था। नहीं, अभी तुम्हारा ज़र्फ़ आज़माना है, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाइश बनाना है, ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी अम्मा की बात मानकर शादी कर लो। मेरा दिल नहीं मानता अरूसा, अब बस तुम नहीं तो कोई नहीं। वलीद का धीमा गंभीर लहजा समातों में उतरता आँखों को भिगो रहा था। ये शख्स तो इसके दिल में ज़िंदा था, इसे कैसे मार देती? मगर गुलशन फुप्पो, सुनो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारे साथ साथ रहकर पहले तुम्हारी वहशतों का साथी बनूँगा, फिर खिलवतों का। वलीद, वो सिसक उठी। भूल जाओ मुझे, छोड़ दो मुझे। ये माशरा, ये लोग, तुम्हारे घर वाले नहीं देख सकते हमारा मिलन। दूसरी सूरत भी तो है। लहजा दहक रहा था। ऐसा क्या है मुझ में? आंसुओं को बहने दिया। मेरा अरमान हो, मेरा दिल हो, मुझे तुम बिन कुछ सोचता ही नहीं। तुम्हारे जैसा कोई नज़र नहीं आता। वलीद, इसके आंसू तवातुर से बह रहे थे। जाने वलीद हो तुम। इसने फ़ोन बंद किया और घुटनों पर सर रख कर रोती। बेटा मोहब्बत की इंतहा पर और माँ नफ़रतों की इंतहा पर।
लम्हा भर को दिल ने बगावत पर उकसाया, क्यों दर्द जिगर सहना है, क्यों दिल को दार पर दिखा जाए, क्यों अजियतों की सलीब उठाई जाए। वलीद तो कहता है इंसान अपने लिए खुद गर्ज बन जाए। इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ नन्हे मुन्ने ज़र्रात की तरह बिखरी होती हैं। अगर इनको यकजा कर लिया जाए तो खुशियों का जहान आबाद हो जाए। मगर एक बार फिर वो सिसक उठी। बहनों ने इसे मान दिया था, इसने बगावत का सर कुचल दिया। ज़िंदगी में बहुत से मकामात पर हमें दूसरों के हवाले से सोचना पड़ता है। बहते आंसुओं पर बंद बांधने लगा। दूसरों का सलूक हिजर बन जाता है। तकदीर में रकम दुखों को किसी तौर ख़त्म नहीं किया जा सकता। बेदर्दी से आंखों को रगड़ा और बैग करीब घसीट कर जिप बंद करने लगी। ज़िंदगी के नए सफ़र में मासी इसके साथ थी और खुश थी। वो अपने पीछे नाराज़ लोगों का एक जहान छोड़ आई थी, मगर राब्ते में थी। नया अस्पताल बहुत बड़ा और जदीद सहूलतों से मुज़य्यन था। यहाँ के इंचार्ज बाबर नियाज़ी थे। इसके साथ डॉक्टर अंबर और डॉक्टर रिहान भी आए थे। इस अस्पताल की ओपनिंग के बाद ये डॉक्टर्स का नया पैनल था। अभी मरीज़ भी कम थे। हॉस्टल में इसके रूम में डॉक्टर शहला थी। उनका ताल्लुक़ मकामी इलाके से था, मगर रिहाइश हॉस्टल में थी। क्यों, ये इसने जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि हर किसी के साथ मसले होते हैं। वैसे भी वो अपने काम से काम रखने वाली थी। डॉक्टर अंबर अपने मामू के घर ठहरी थी और डॉक्टर रिहान अपने कज़न के घर। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, इलाका इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। अस्पताल के अतराफ़ में सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। लहलहाते दरख्त थे। सामने मेन रोड था। इसके किनारे किनारे सफ़ेदे के दरख्तों का सिलसिला दूर तक चला गया था। अस्पताल के लिए इस जगह का इंतखाब बहुत सोच समझकर किया गया था। तरोताज़ा आबो हवा, आँखों को तरावट देता सब्ज़ा, पुरसकून माहौल और गहरी खामोशी। वो खामोशी को महसूस करती और अपने तमाम दुख भूल जाती। बस बंद आँखों के पर्दे पर एक तस्वर रक्स करता। इसका भी ऐसे ही किसी पुरफ़ज़ा मुकाम पर अपना ही खूबसूरत अस्पताल हो। बेशक छोटा सा हो, मगर हो। और इसी सिलसिले में वो यहाँ मुकीम थी। मासी को ये चमन, ये नखलिस्तान, ये पुरफ़ज़ा मुकाम बहुत अच्छा लगा था और वो खुश थी। अरे ऐसी चिलत्तर और शातिर लड़की, बंदा सालिम निकल ले और ख़बर ना हो। इसीलिए तो मैंने बहू बनाने के लिए हामी नहीं भरी थी। कैसे वलीद के गले में पट्टा डाला है। अरे ऐसी बदसात, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार। जाने रुखसाना भाभी ने क्या खाकर इसे पैदा किया था। शक्ल ऐसी मासूम और लच्छन, तौबा तौबा। गुलशन आरो को जब से पता चला था कि अरूसा का ट्रांसफ़र कोयटा हो गया और वो चली भी गई है, उनके हाथ एक चटपटा चटखारेदार मौजू लगा था। इन्हें खूब दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला था। गुलशन आरा, जो अरूसा के वालिद की चचाजाद बहन थी, अजीब तरह की औरत थी। अपनी मनवाने वाली, दूसरों को खातिर में ना लाने वाली, खुदसर, ज़िद्दी, कीना सिफ्त और दोगली। 6 बेटों का फ़ख्र उनके साथ था। शौहर ने सारी उम्र हथेली का छाला बनाए रखा। उन्होंने बेटों को ज़माने की हवा ना लगने दी और अपनी पसंद से उनकी बीवियां लाईं। बड़े दोनों तो साबिर और शाकिर थे। वकास के बाद वलीद का नंबर था और वलीद को अपनी कज़न अरूसा बेहद पसंद थी और माँ से बेतकल्लुफ़ी के नतीजे में इसने अरूसा का नाम ले भी दिया। गुलशन आरा को तो वलीद हाथों से निकलता हुआ महसूस हुआ। वलीद अरूसा के लिए डट गया और गुलशन आरा कतई इसे बहू बनाने पर तैयार न थी। वलीद अरूसा से शादी पर वज़ीद था। बिलाखिर गुलशन आरा ने अरूसा को सारे ख़ानदान में ज़लील ख्वार करना शुरू कर दिया। नौकरी करने वाली लड़कियां कब अच्छी होती हैं, और वो भी डॉक्टर। हम वक्त मर्दों के दरमियान रहे। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार। तरह तरह के इस पर बोहतान लगाए। वलीद ने जहर खाने की धमकी दी तो वो दिल पकड़ कर बैठ गई। वलीद ने खामोशी इख्तियार कर ली। अरूसा नहीं तो कोई भी नहीं। शादी ना हो भी तो भी ज़िंदगी गुजर ही जाती है ना। पिछले 3 सालों से वो इसी बात पर कारबंद था। गुलशन आरा ने कितनी लड़कियां दिखाई, मगर हर बार इसने कोई ना कोई बहाना करके इनकार कर दिया और गुलशन आरा हर बार इसे सलावातें सुनाती, मगर वो कान बंद करके निकल जाता। उन्होंने ज़बरदस्ती मंगनी करना चाहिए। वलीद ने बाहर जाने का शोशा छोड़ दिया। यूँ गुलशन आरा को अरूसा से चिढ़ सी हो गई। उनका इनकार ज़िद में बदल गया। वलीद के वालिद गफ़्फ़ार साहब इस मामले में मजबूर थे। ना बेटे को समझा सकते थे और ना बीवी को, बस खामोश थे। अरूसा वलीद से कल्बी ताल्लुक़ महसूस करती थी। उनके दरमियान खामोश समझौता था, लेकिन गुलशन आरा की ज़ुबान की तेज़ी ने अरूसा को अंगश्ते बनद्दा कर दिया। माँ तो थी ही कम हिम्मत, बाप दिल के मरीज़, बड़ी आपा और नाइला आपी कहाँ तक संभालती। गुलशन आरा की कीना तोज़ी ने उनकी जान ले ली।
गुलशन आरा शायद अपनी आदत से मजबूर थी। गाहे बगाहे तीलियां सुलगाती रहती थीं ताकि वलीद का दिल बुरा हो, मगर वलीद अपनी माँ की आदत से वाकिफ़ था। इससे बड़ी बात यह कि वो रोसा से वाकिफ़ था। बरसों का साथ था, इसका दिल मुतनफ़र ना हो सका। अब उनके हाथ नए चुटकला लगा था। हाय हाय, जवान लड़की और तन्हा, इतना लंबा सफ़र, वहाँ अकेली कैसे रहेगी। अम्मी इसके साथ मासी गई है। वलीद खून का घूंट पी गया। अरे नौकरानी को मुट्ठी में करना कौन सा मुश्किल है। खुदा का खौफ करें अम्मी, तेरे बड़ी आग लगती है। अम्मी किसी पर, बस खामोश, एक लफ्ज़ ना सुनो। जाने क्या घोल कर पिला दिया है। सुन ले, सारी उम्र कमारा बिठा लूँगी, इस कमज़ात को नहीं लाऊंगी। अगर बेटे ने खुद सरी कर ली तो। गफ़्फ़ार साहब तो बज़ाहिर टीवी देख रहे थे, सोच कर रह गए। अरे कुछ दिनों की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका लहजा मायने खेज था। सारे चिलत्तरों से वाकिफ़ हूँ, ना ईमान लाया तो देखना। तो वलीद उठा और बाहर निकल गया। देख रहे हैं इस लड़के के लच्छन, पान की गलोरी बनाकर मुंह में रखी। तो तुम क्यों भेड़ों के छत्ते को छेड़ती हो। बस मैं इसके लिए ऐनी को लाना चाहती हूँ, इसे राज़ी करें। इस कमबख्त मारी ने जाने क्या सहर फूंका है, और कुछ सोचता ही नहीं। मुतनफ़राना अंदाज में सर झटका। गफ़्फ़ार साहब उन्हें देख कर रह गए। इसके आजकल रिश्ते आए हुए हैं, इसे कहें कि हाँ कर दे। बेगम, हाँ वो अपनी मर्ज़ी से करेगा या तुम्हारी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से करवा के रहूँगी, देखिएगा आप, या तो मैं नहीं या वो मनहूस नहीं। उनका लहजा मुश्तइल हो गया। हाँ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ला हौल वला कुव्वत। गफ़्फ़ार साहब टेलीविज़न के चैनल चेंज करने लगे। ये तुम मुझे फ़ोन किस लिए करते हो रोज़ाना। वलीद का फ़ोन सुनते या रोसा ने कहा, यार ये इसी दिन भी तो गुजारने आना। ये 80 दिन भी तो गुजारने आना। 80 दिन, हाँ 80 दिन, 12 दिन तो गुजर गए ना 3 माह की मुद्दत में से। मिस्कीन सा लहजा था। माय गॉड, तुम्हारी आवाज़ सुनकर सैर हो जाता हूँ। लगता है काफ़ी दिन हो गए फुप्पो से जूते नहीं पड़े। ज़रा सिकाई करवा लो, मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। वाह री किस्मत, वाह री मोहब्बत, इसने आह भरी। उड़ा लो मजाक। तुमको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं है, देखना गिन गिन कर बदले लूँगा। इसका लहजा मोहब्बतों से चूर था। वलीद, अरूसा ने ख़ुद को संभाला, तुम नादान ना समझ नहीं हो। ज़िंदगी में बहुत कुछ हस्ब मंशा नहीं होता। फुप्पो को तुमसे बहुत मोहब्बत है, उनका दिल मत दुखाओ। और मेरा दिल दिल नहीं है क्या, संगरेज़ा है, पत्थर है ना। तुम तो समझदार हो, इसीलिए तो अड़ा हुआ हूँ, वगरना। वो हंसा। अम्मी की कम फहमी तो। अच्छा फ़ोन मत किया करो, मैं मसरूफ़ होती हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। लगता है आजकल ऑफ़िस नहीं जा रहे, तुम्हारी यादों के साथ जाता हूँ। वलीद, मेरी बातों से शर्म आती है क्या। वो खिलखिला कर हंसा। इसने फ़ोन बंद कर दिया। समातों में इसका बेसाख्ता कह कहा मुंजमद हो गया। वलीद, इसे उलझन हुई, गुस्सा आया, और फिर गुस्सा तरस में बदल गया। इंसान बेख्तियार शायद यूँ ही होता है। इसका दिल डरा हुआ था और वो रिश्तों की डसी हुई थी। इसीलिए वलीद से गुफ्तगू करते हुए इसका लहजा मोहतात होता था, मगर वलीद शिद्दत पसंद था और मोहब्बत की इंतहा पर था। ऐसा क्या है मुझ में, वो सोचती रह गई। मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ वलीद, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वलीद को आड़े हाथों ले लिया। फरहान और कमाल 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं, और तुम, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर वो बहबूद आबादी के लिए नहीं सोचते। भाई मैं तो सिर्फ। वलीद, मेरी बात को मजाक में मत टालो। मेरी मजाल, इसने कानों को हाथ लगाया, और तुम्हारी मजाल होनी भी नहीं चाहिए। ऐनी अच्छी लड़की है, भाईजान भी चाहते हैं। ऐनी, ज़ेरे लब कहते कहते इसकी रगे ज़राफ़त फड़की, और वापस जाने से पहले वो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ऐन से ऐनी, ऐन से। तेज़ी से छालिया को तरते गुलशन आरा के हाथ रुक गए। अम्मी, इसमें मुझे कितना फ़ायदा होगा। माँ के तेवर नोट करता वो हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। भाई फ़ायदे का मत सोचो, फ़वाइद हैं फ़वाइद। बड़ी भाभी अंदर आ गई। अमेरिका का ग्रीन कार्ड सबसे बड़ा। और दिल अगर खुश ना हो तो। इसने आंखें मूंद लीं। दिल की खुशी तो मुकद्दम है भाभी। उन्होंने निगाह चुरा ली। गुलशन आरा ने करीब रखा कुशन ताक कर इसके मुंह पे मारा।
वो जो जज्ब से कहते कहते जज्बाती होने लगा था हड़बड़ा गया। माँ के दिल की खुशी का एहसास नहीं है तुझे? माँ को नाराज़ करके खुश रह लेगा तो कमबख्त। अम्मी फ़ौरन उठ बैठा। आपकी खुशी ही तो अजीज़ है, वगरना इसे भी आपकी खुशी ही मंजूर है। आपके बगैर तो कुछ नहीं है। तेरे ऊपर से इसका भूत नहीं उतरा अभी। अम्मा ये मोहब्बत है, चढ़ता और ढलता चाँद थोड़ी है। एक बात तो लिख ले, वो लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। ज़माने भर में जाने क्या गुलखिलाती रहती है, कोई इसके पीछे जाने वाला, खबरगिरी करने वाला नहीं। जाने कितनों का मुंह देखा हो। इस कमाश की लड़कियां घर नहीं बसाया करती। बस इससे नहीं, किसी से भी कर ले। नहीं अम्मी, वही, वरना कोई नहीं। संजीदगी से देखा। मैं इसके मुंह पर तेज़ाब फेंक दूंगी। वो सुलग गई, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा होने लगी। अम्मी प्लीज़। उसका लहजा मुल्तजी होने लगा। मैं नहीं जानती क्या करेगा, भगाएगा, कोर्ट जाएगा। याद रख, कभी तुझे माफ़ नहीं करूँगी। फिर आप मुझे मजबूर मत करें। वो खड़ा हो गया। ज़िंदगी को यूं ही गुजरने दें। इसने बात मुकम्मल की और बाहर की जानिब रुख किया। अकेले कैसे गुजरने दूँ? संसार कर दूँगी इसे, मार दूँगी। जाने क्या घोल कर पिला दिया है, कहीं हाथ ही नहीं पड़ने देता। कलमुही, बदजात, ज़माने भर की। वो जो मुंह में आया बोलती चली गई। बड़ी भाभी बाहर निकल गई और गुलशन आरा के मुंह से कुफ्र निकलता रहा। आजकल उनका दिमाग सवा नेज़े पर था, किसी पल करार नहीं था। वलीद उनके मुकाबिल आ गया था। मैं चाहता हूँ ना, आप बस मेरी खातिर चलें, पिछली तमाम बातों को भूल कर। वो ऐसा किसी सूरत नहीं कर सकती थी, वरना बेटा हाथ से निकल जाता। और शौहर के साथ साथ उन्होंने बेटों पर भी राज किया था। किस तरह बंद मुट्ठियों को खोल देती। वो पहुँच गई रोसा की बड़ी आपा के पास। पट्टा डाल कर रखो बहन के गले में। जाने कहाँ कहाँ मुँह मारती फिर रही है। शर्म न आई जवान बहन को यूँ अकेला रुखसत करते हुए। अपना नहीं तो कम अज़ कम मरे हुए माँ बाप का ही ख्याल कर लेती। और तुम लोग इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? जाने किन किन लोगों को उल्लू बनाती फिर रही है। बड़ी आप ही दम बखुद थी, करीब ही सास बैठी थी। फूफो, आप बड़ी हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो दिल चाहे, जो मुँह में आए कहती चली जाएं। हम लोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरोसा का सारा बचपन आपके सामने गुजरा है। मेरी सीधी सादी, हाँ तुम्हारी सीधी सादी बहन ही ने जाने क्या घोल कर पिलाया कि वलीद हाथ ही नहीं पड़ने देता। इसकी ना हाँ में नहीं बदलती। इससे कहो कि वलीद का पीछा छोड़ दे, वरना वो सांस लेने को ठहरी। वरना मुझे इलाज करना भी आता है, कस बल निकालना भी। उनका लहजा अजीब सी फिरौनियत लिए हुए था। बड़ी आप ही काँप कर रह गई। आपकी कोई बेटी नहीं है फुप्पो, इसीलिए आपको खुदा का खौफ नहीं है। वलीद को संभाल कर रखें। क्यों पीछे पड़ गया है इसके? अरोसा को तो मैं जानती हूँ। गुलशन आपा, आप वलीद की बात ठहरा क्यों नहीं देती कहीं? बड़ी आपा की सास ने दरमियान में कता कलामी की। इसे अरोसा का कलमा पढ़ने से फुर्सत मिले तो कहीं हाथ भी रखूँ। वो तो मुँह की बात पकड़ता है। क्या करूँ मैं? अब आखिरी दफ़ा आई हूँ, इसके बाद मैं खुद निपट लूँगी इससे। क्या करेंगी आप? बड़ी आपा को ताव आ गया। कम तो तुम भी नहीं हो बीबी। तीखे चतोन उन पर डाले। छोटी ने सवा सेर तो होना ही है। फुप्पो, जो मैं करूँगी वो तुम देखना। कम से कम ऐसी 74 लड़कियों को बहू नहीं बना सकती। अगर इसने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा, मैं इस मोहल्ले में इसका रहना अजीरन कर दूँगी। साथ ही जाने के लिए खड़ी हो गई। वलीद को भी पट्टा डाल के रखें। मेरी बहन के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। अपनी बहन के लिए मैं ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस चाँद को तो मैं गहना कर रहूँगी। मकरू मुस्कुराहट और पुरस्कार लहजे में कहती वो घर से निकल गई। बड़ी आपा ने दहल के सर हाथों में थाम लिया। अभी भी वक्त नहीं गुजरा। मैं कहती हूँ मेरा बेटा बुरा नहीं, संभाल लेगा सब कुछ। फूफो भी मौका शनास थी। लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। बड़ी आपा ने एक निगाह सास पर डाली और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। अक्कड़ ना गई, जाने किस बात का ज़ौम है। बड़ी आपा से फ़ोन पर बात करता वलीद दम बखुद रह गया। इसे माँ से इस दर्जा की कम अकली की उम्मीद ना थी। अम्मी, आपने बड़ी आपा से जाकर क्या कहा है? उनके सामने जाकर बैठा। क्यों, तुम्हें इसने क्या बताया है? अम्मी, आपको इस ज़ेब नहीं देता किसी के किरदार पर जाकर कीचड़ उछाले। क्यों, सच कड़वा लग गया है क्या? उन्होंने तंज से बेटे को देखा। अम्मी प्लीज़, मैं उससे, ख़बरदार, जो एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला। मैं इस कमीनी सिफ्त लड़कियों का भी बहू नहीं बना सकती।
जाने क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। अपने गुस्से को कंट्रोल करता वलीद बाहर निकल गया। अब पानी सर से गुजर गया था, आर या पार। और नहीं, अरूसा से दो टोक बात करता हूँ, अम्मी नहीं मानती, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसने कोयटा के लिए कॉल मिलाई, मगर लाइन क्लियर नहीं मिली। इसने सर हाथों में थाम लिया। क्या मर्ज़ी है तुम्हारी गुलशन, फिर एनी के लिए मुझे वापस भी जाना है और बिज़नेस भी देखना है। कल मैं कोयटा जा रहा हूँ, वापसी पर अपना जवाब बता दो। अफजल भाई, एनी तो है ही मेरी, आप इसे कहीं और कैसे दे सकते हैं? और चंद दिन में उतर जाएगा ये आशिकी का भूत। ख़ानदान से बढ़कर भी कुछ हो सकता है, वलीद की ज़िंदगी संभल जाएगी। कुछ पैसे वैसे देकर इसका मुंह बंद कर दो। उन्होंने मशवरा दिया। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, वलीद के सर से नहीं उतरती, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। आलिम बाबा को बुलाया है, जाऊंगी आज। अरे तुम कहो तो इसे उठवा दूं, सारी उम्र वलीद इसका नाम भूल जाएगा। कहाँ होती है वो? गुलशन आरा के भाई ने इन्हें नया रास्ता दिखाया। वैसे भी चोर दरवाज़ों को इस्तेमाल करने वाले बहुत से चोर रास्तों से वाकिफ़ होते हैं। वलीद को किसी तरह भी हाथों से नहीं निकलने देना था। वो इनके कारोबार को चार चांद लगा देता अगर इसके दिमाग से ईमानदारी वफाशारी निकाल दी जाती। और ये कौन सा मुश्किल काम था, पहले इसके दिमाग से इश्क का फतूल निकालना था। सच ऐसा हो सकता है क्या? गुलशन आरा की आंखें चमकने लगीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो। तिरछी चमकती निगाह उन पर डाली। अरे भाई साहब, मैं तो दिल से चाहती हूँ इसका पीछा छूट जाए। सच, आपकी बेटी को फूलों की तरह रखूँगी। उनका चेहरा चमकने लगा। बस तुम मुझे इसकी एक तस्वीर और रिहाइश बता दो। सिगार में तंबाकू भरने लगे। जोश व खरोश से वो तमाम बातें बताने लगी। आज 3-4 दिन बाद कॉल मिली थी। वलीद खुश हो गया। बस अब भरोसा से हर बात फाइनल करनी है। कब तक हम यूँ ख्वार होते रहेंगे? रिसीवर कान से लगाया, डॉक्टर अरूसा को बुलवाया और जो जवाब इसने सुना इसने हैरान कर दिया। डॉक्टर अरूसा आलम 2 दिन से अस्पताल से गायब हैं। इसकी मुलाजमा? वो हवास पाकता हुआ, वो भी उनके साथ थी। कहीं घर तो नहीं चली गई? इस सूरत में भी अस्पताल को इसकी खबर होती। ओह मेरे खुदा! फ़ोन रख कर आपा के घर का नंबर मिला है। कुछ करो वलीद, हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फ़ोन पर वलीद की आवाज़ सुनते ही बड़ी आपा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरा दिल घबरा रहा था। आज मैंने इसे फ़ोन किया तो भल भल रो रही थी। कहाँ जा सकती है वो? किसी दोस्त की शादी, कहीं और, या इधर आ रही हो छुट्टी लेकर? मुझे इसके हर मामले की खबर होती है वलीद। सिसकी ली। रोज़ मुझसे फ़ोन पर बात करती है। पिछले 3 दिन से इसका फ़ोन नहीं आया। मेरा माथा ठनका था। आज मैंने ख़ुद फ़ोन किया तो। अच्छा मैं देखता हूँ, आप ख़ुद को संभाल लें। वलीद ने अपने मख्तल होते हवासों को समेटा। इसके दिमाग ने फौरी हल निकाला कि उधर पहुँचा जाए। अम्मी, मैं 2 दिन के लिए ऑफ़िस के काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसी अफरा तफरी? रुक तो सही, ऐसा कौन सा काम है? अम्मी आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़रूरी काम है। बेचैनी से बालों में हाथ फेरा। ये काम कहीं कोयटा में तो नहीं है? आपको कैसी इल्म? वो चौंका। हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। उन्होंने नज़र चुरा ली। वलीद बेयकीनी और यकीन के मिले जुले तासुर से उन्हें देखने लगा। तुझ पर जो आजकल भूत सवार है, इसीलिए पूछ लिया। अम्मी, इसका लहजा दुख के तासुरात से लबरेज था, मगर मुकाबिल माँ थी, एहतराम माने था। खुदा हाफिज़। नम पलकों को झपकता हुआ बाहर निकल गया। गुलशन आरा इसे जाता देखती रह गई। सीने पर सांप लौट रहे थे। होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनकी किस्मत में अनदेखी आग में जलना और झुलसना लिखा होता है। खुदा ऐसे लोगों की रस्सी दराज करता है और वो लोग लकड़ी की तरह सुलगते हैं। सफ़ेद पोश घरानों की इज़्ज़त बहुत नाजुक और संभाल कर रखने वाली होती है। ज़रा सी रुसवाई इन्हें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। बड़ी आपा और नायला आपी दिल ही दिल में इज़्ज़त की सलामती की दुआएं मांग रही थीं। किसी को किस मुँह से बताती अरोसा के साथ क्या हुआ? कोई हादसा, अगवा, एक्सीडेंट? लोग तो राई का पहाड़ बना लिया करते हैं। ले देकर वलीद का सहारा था। वलीद से उम्मीद थी। वलीद से पहले इसकी माँ आ गई। अकीला, नायला, ये तरबियत है तुम्हारी? तुम्हारी शह पर सब कुछ हुआ। कहाँ है अरोसा पिछले चंद दिनों से? उन्होंने आते ही ड्राइंग रूम में बैठकर खाला के सामने कानों के लोगों को छूते हुए कहा।
तौबा तौबा, ऐसी खुदसरी, हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऐसे ही तो मेरी छठी इस खबरदार नहीं करती थी जो मैं वलीद को रोकती थी। अरे बाहर निकलने वाली लड़कियां होती ही ऐसी हैं। तौबा तौबा। बड़ी आपा और नाइला ऐसे बैठी थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। इन्हें कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ इन 3 अफराद के दरमियान थी, वलीद, मैं और बड़ी आपा। नाइला ने यकदम सोचा। खाला के चेहरे पर तंज था। नाइला ने निगाह चुरा ली। नाइला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ए मुझसे पूछो, ये तो हैं पर्दा डालने वाली। अरूसा कितने दिनों से हॉस्टल से गायब है। इनके चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। फुप्पो, नाइला उनके अंदाज पर सुलग उठी। रहम करें, ऐसा घनावना इल्ज़ाम ना लगाएं। आखिर अरे बीबी, मुझे क्या ज़रूरत है इल्ज़ाम धरने की? सच कह रही हूँ। आपको कैसे पता चला? मैंने सोचा वलीद इधर ही सर टकरा रहा है तो अपना भी मार लूँ, इसलिए फ़ोन किया था उधर, तो ये जवाब मिला। खाला को देखते हुए कहा। आपने इस बात के लिए मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? बड़ी आपा ने कहा। हैं? गुलशन आरा लम्हा भर को खामोश हुई। अरे देख रही हो, एक तो नेकी करने चली थी, ये कैसे जरह कर रही है। संभालो अपनी बहू को सुगरा। शुक्र खुदा का मुझे मौला ने बचा लिया। जाने ये औलाद आलम के किस गुनाह का खमियाजा है। शुक्र खुदा ने इसे बेटा नहीं दिया, वरना इज़्ज़त और गैरत के जनाजे ही निकल जाते। अपनी रौ में कहती बुड़बुड़ाते बाहर निकल गईं। दोनों बहनें दुपट्टे में मुंह छुपाकर रोने लगीं। जाने किस जहन्नम, किस गुनाह का बदला थी ये फुप्पो। जाने अरूसा कहाँ, किस हाल में होगी। वलीद ने राब्ता नहीं किया। आंखों में अश्क और लबों पर दुआएं थीं। ठीक 10 दिन बाद अरूसा दरवाजे पर थी, बेजान, कमज़ोर, लाग़िर, मिलके जैसे हुलिये में। इब्रार घर से निकल रहा था, इसे देखकर चौंक गया। वो अपने हवासों को संभालती खड़ी थी। बड़ी आपा को बुलाओ। क्यों? किस खुशी में, किस कारनामे की खबर देनी है? इब्रार, इसने सीने पर हाथ बांधकर इसे देखा। देख लिया खुदसरी का अंजाम। चेहरे पर तंज था। प्लीज़। टैक्सी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। क्या मुंह लेकर इधर आई हो? शर्म से डूब मरती। इब्रार, बकवास बंद करो। बड़ी आपा चौंक कर बाहर भागी आई। अरूसा दम बखुद से अंदाज में खड़ी रह गई। आपा। अरूसा के हवास बिखरने लगे। तुम इस घर में कदम नहीं रख सकती। इब्रार आगे आ गया। इब्रार, हटो तुम। भाभी, मैंने कह दिया ना, ऐसी बद किरदार, बद चलन औरत इस घर में कदम नहीं रख सकती। सुलगती नज़रों से देखते हुए इसने अपने लिए इनकार की तौहीन का बदला ले लिया। आपा, मैं गुनाहगार नहीं, मैं बेकसूर हूँ। बड़ी आपा लम्हा भर में पलटकर अंदर चली गई। अरूसा के पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए। ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए। बीबी, किराया। टैक्सी वाला किराया मांग रहा था। कितने लोग इब्रार की आवाज़ और अंदाज पर रुक गए थे। जाना पहचाना मोहल्ला, मिलने जुलने वाले लोग। इब्रार, यूँ? अरूसा ने ख़ुद को संभाला। चलो। बड़ी आपा बाहर आ गई। उनके हाथ में घर की चाबी थी। आगे बढ़कर उन्होंने अरूसा को बाहों में ले लिया। ढेरों सुकून इसके रगों में सराइत कर गया। माँ जाई को इसकी हुर्मत का पास व इतबार था और वही ने बता रही थी। आपा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं खबर मुझे किसने अगवा किया था। मैं अस्पताल से ड्यूटी देकर हॉस्टल जा रही थी कि मासी की तबीयत ख़राब थी। अचानक ही कुछ लोगों ने आंखों पर कपड़ा रख दिया और फिर मुझे खबर ना हुई कि वो लोग क्या चाहते थे, क्यों अगवा किया, पता नहीं। आखिर में बस इतना कहकर कि सॉरी, हमने गलतफहमी की बिना पर तुम्हें उठा लिया, हमें तो। अरूसा उन्हें बताते हुए फूट फूट कर रो रही थी। बड़ी आपा इसे सीने से लगाए बस रोए जा रही थी। अम्मी, मैंने अरूसा से शादी करनी है। वलीद ने मुट्ठियाँ भींचते हुए माँ के सामने कहा। है क्या बकवास की? जो आपने सुन ली है। इसने मुंह फेर लिया। ख़बरदार, जो इसका नाम भी लिया। बदज़ात, बदफितरत, बदकिरदार, जाने किस किस को। अम्मी प्लीज़ इजाज़त दे दें, मैं आपकी मर्ज़ी से निकाह करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दूँगी इजाज़त। अरे मैं तो इसका वो हशर करूँगी, दुनिया याद करेगी। मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई है कलमोही नागिन, चुड़ैल। उनका बस नहीं चल रहा था, चुड़ैल बनकर अरूसा को खून पी जाती। उनकी आंखों में खून उतरने लगा। अरे पूछ इससे, पिछले 10 दिनों से किसके साथ रंगरलियाँ मनाई हैं, गुलछर्रे उड़ाए हैं। तेरी गैरत ये गवारा कैसे करेगी? हाँ पूछ लूँगा। इसका लहजा सख्त और चेहरा पत्थर था। निकाह के बाद। इसके बाद वो रुका नहीं और बाहर निकल गया और वो सीने पर हाथ मार मार कर बैन करने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा मेरे मुकाबिल नहीं। नहीं, वो दुहाइयाँ देने लगी।
हाँ, ये नहीं होता अगर तुम पहले दिन ही उरूसा के लिए मान जाती और वलीद को जिद ना दिलाती। गफ्फार साहब सामने आ गए। जवान औलाद को समझाया जाता है, इसे खुद सर नहीं बनाया जाता। तुमने इसके साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तासुफ, मलाल, दुख, रंज के मिले जुले एहसास से उन्हें देखा। मैंने क्या किया है? निगाह चुरा कर पूछा। खुद को संभाला, कहीं किसी को इल्म तो नहीं हो क्या? ये तुम खुद से पूछो। वो बाहर निकल गए। गुलशन आरा हवास बाख्ता सी होने लगी। खुद से तो बाद में पूछूंगी, पहले इसको आईना तो दिखा कर आऊँ। चादर संभाली और बाहर निकल गई। कहाँ है ये बदकिरदार? अरे तुझे शर्म ना आई? अब तो हम इज्जतदार लोगों का पीछा छोड़ दे। बावाज़े बुलंद बोलती धड़ल्ले से वो घर में दाखिल हुई थी। वली जो इनके पीछे इधर पहुंचा था दम बखुद था। अरूसा उठ बैठी। बड़ी आपा किचन से बाहर आ गई। गुलशन आरा सहन के दरमियान में मौलसरे के दरख्त के नीचे तन के खड़ी थी। वलीद दरवाजे के बाहर खड़ा था। अवाइल सर्दियों की धूप ने सहन का अहाता कर रखा था। चुड़ैल, छोड़ दे पीछा, तेरे हुस्न को दाग दाग कर दूंगी, तेज़ाब फेंक दूंगी तुझ पर। अरूसा लब भींचे खड़ी थी। पीछे वलीद खड़ा था। सामने माँ कुफ्र बोल रही थी और बेटा मोहब्बत की छाँव बनना चाहता था। इसने लागर वजूद को संभालते हुए दीवार से टेक लगाई। फुप्पो, अरूसा बेकसूर है, हादसा तो। बड़ी आपा सामने आ गई। बेकसूर? वो झटके से सामने आई। फिर जो उन्होंने बोलना शुरू किया वो डूब मरने के लिए काफ़ी था। इर्द गिर्द के पड़ोसी दीवारों से झांकने लगे। दे सफाई मुझे और गवाही अपनी। फुप्पो, आपने अच्छा नहीं किया कीचड़ उछाल कर। अरे मैं तो तेरा इधर रहना दो भर कर दूंगी। उनकी आंखों में खून उतर आया था। फुप्पो, मैं बेगुनाह हूँ, पाक हूँ। मेरी गवाही के लिए ये अल्फाज काफ़ी हैं। मुझे यकीन नहीं। मेरे वलीद का पीछा छोड़ दे। छोड़ दिया था, इससे कहीं मेरा पीछा छोड़ दे। इसने हाथ बांधे। अम्मी। वलीद आगे आया। वलीद को इधर देखकर उनका पारा हाई होने लगा। झपट कर बढ़ी और उसे बालों से पकड़ के घसीट लिया। फुप्पो, फुप्पो। बड़ी आपा आगे बढ़ी। अम्मी, अम्मी क्या तरीका है? पीछे से वलीद ने संभाला। तुझे तो घर जाके बताऊंगी। पूरी ताकत से उन्होंने अरूसा के बालों को झटके दिए और इसे दीवार से दे मारा। उसके माथे से खून निकलने लगा। बाहर गेट पर लोग जमा होने लगे थे। फुप्पो ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हता कामेज़ अंदाज, कुफ्र तोलते लफ्ज़, पुर तहकीर लहजा। उफ, लोगों की नज़रें आर या पार। बमुश्किल ख़ुद को संभाल कर चेहरा उठाया। बिखरे बालों को दाएं हाथ से पीछे किया। लोगों की तंजिया नज़रें। अब नहीं तो कभी नहीं। ये इसका घर, इसका महल, इसका मोहल्ला था। बिखरती कुव्वतों को यकजा किया। इस नारवा सलूक ने इसके अंदर एक कुव्वत को सराइत कर दिया था। फुप्पो इसको मारने के लिए बढ़ रही थी। वलीद और बड़ी आपा ने संभाला हुआ था। नाइला आपी, खाला, हमीद भाई भी घर में दाखिल हो रहे थे। वलीद, वो झटके से खड़ी हुई। ये देखो। इसने शहादत की उंगली उठाकर इतराफ़ में घुमाई। जो बाजार तुम्हारी माँ ने लगाया है, इसके शायकीन और तमाशबीन देखो। ये बदनामियाँ तुम्हारे नाम की हैं। मैं कलमा पढ़ के इकरार करती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, पाक हूँ। मुझ पर ये इल्ज़ाम, ये तोहमत तुम्हारी माँ ने लगाई है। मुझे अगवा तुम्हारी माँ ने कराया है। मुझे रुसवाइयों के इस गड्ढे तक तुम्हारी माँ ने पहुँचाया है। बोलो, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन है तो तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। बोलो, मेरा साथ कबूल है? अरूसा। वलीद शशता रह गया। बोलो, मुझसे निकाह करोगे? चुड़ैल, पिछल पैरी, डायन, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। गुलशन आरा फुप्पो इस पर चील की मानी झपटी और पूरी कुव्वत से इसे झंझोड़ कर दीवार से टकरा दिया। बोलो वलीद, अभी इसी वक्त मुझसे निकाह करोगे? वलीद, वलीद दफ़ा यहाँ से, खा जाएगी ये तुझे। अम्मी, इसने शिकस्ता लहजे में उन्हें पुकारा। एक तरफ माँ थी, दूसरी जानिब मोहब्बत। हर महाज पर माँ जीती थी। हर लम्हा इसने माँ का एहतराम किया था, उनकी खुशी का ख्याल रखा था। हो सकता था अब भी वो माँ की खुशी को मुकद्दम जानता और हमेशा के लिए पीछे हट जाता। अरूसा की जो तज़लील हुई थी, इसका यही तकाजा था। लेकिन वलीद ने मुंतशिर बालों में उंगलियां फेरी।
खुश्क लबों को ज़ुबान से तर किया, अपनी हिम्मतों को यकजा किया, माँ के मुकाबिल होने का हौसला पैदा किया। अरूसा बेगुनाह थी। इसे एनी ने बता दिया था कि एनी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसने अपने पापा और फुप्पो की गुफ्तगू सुन ली थी और वो वलीद को इसने बताया था। अरूसा को फुप्पो और पापा ने मिलकर अगवा करवाया और ये किसी कोयटा के फार्म पर रखा गया था। वलीद ने बाला बाला इसे आज़ाद करवा लिया था। इसे यकीन नहीं आया था कोई माँ इस दर्जा गिर सकती है। इसे माँ के रुतबे का भी ख्याल नहीं, फिर भी वो माँ का एहतराम कर रहा था। बोलो वलीद, बोलो। इस औरत को मैंने इसका बेटा बख्श दिया था। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ज़माने में मुझे रुस्वा कर दिया। मैं बुरी हूँ ना? वो जनूनी हुई। मैं बदकिरदार, बदफितरत हूँ ना? एक बार फिर खड़ी हुई। ये चुड़ैलप, उनकी आंखों में खून उतर रहा था। अरूसा, वलीद सामने आ गया। मुझसे शादी करोगे? निगाह उठाई। हाँ। धीरे से इसके शानों पर हाथ रखा। वलीद, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी नाफरमान। मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। रुक जा, रुक जा। वलीद अरूसा का हाथ थाम कर लोगों के दरमियान से निकल गया। लम्हा भर में सहन में सन्नाटा छा गया। सर्दियों की धूप ढलने लगी थी। गुलशन फुप्पो तेवरा कर गिर गई। सब इन्हें संभालने के लिए बढ़े और बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ दूर होती जा रही थी। कोर्ट में निकाह हुआ, किस तरह इसने साइन किए, किस तरह बाहर आई, इसे कुछ खबर नहीं थी। दिमाग सुन्न हो रहा था, साएं साएं कर रहा था। माथे की चोट से खून दिस रहा था। सर घूमने लगा, शायद चोट कहीं और भी लगी थी। धीरे से सर के पिछली तरफ हाथ फेर कर सामने किया। उंगलियां खून में तर होने लगीं। चोट कहीं और भी लगी थी। दिल पे हाथ रखा। दिल बेइंतहा बोझल हो रहा था। वलीद ने इसका हाथ थाम रखा था, यख और बर्फीला हाथ। चलो तुम्हारी बैंडेज करवा दूँ। संजीदगी से सामने रुका। वलीद, तुम खुश हो ना? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरूसा, तुम मुझे अजीज़ हो, मोहब्बत हो मेरी। मैं तुमसे दस्तबरदार हो जाता अगर अम्मी तुमसे इस हद तक ज़्यादती नहीं करती। मैं जानता हूँ बद्दुआओं की छत के पंजे मकान होते हैं, घर नहीं, मगर खुदा से बड़ा मुनसिफ कोई नहीं। मैंने हकदार को इसका हक दिया है, इंसाफ दिया है। मुझसे बड़ा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? वलीद के लहजे में फ़ख्र था। अरूसा ने निगाह उठाई और यक बेयक ही इसे तमाम दुनिया पेंडोलम के मानिंद झूलती नजर आई और इसका वजूद एक जानिब गिरने लगा। सहारे के लिए हाथ उठाया, इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अरूसा, अरूसा, वलीद इसे पुकार रहा था। इसे शदीद किस्म का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो 10 दिन तक आईसीयू में थी। डॉक्टर कह रहा था, ये खुशकिस्मत है, किसी नेकी, किसी दुआ ने इन्हें बचा लिया है, वरना लम्हा भर की ताख़ीर से इनकी दिमाग की नस फट जाती। नाइला आप भी अश्कबार आंखों से तस्बीह के दाने गिरा रही थी। बड़ी आपा बंद शीशों से पेशानी टिकाए बेहिस्सो हरकत पड़े वजूद को देख रही थी। अब्बू अभी अभी गए थे। वलीद बाजुओं पर चेहरा रखे बालकनी से टेक लगाए नीचे खेलते बच्चों को देख रहा था। इसका दिमाग कहीं और था। मंजिल इतनी करीब आकर रूठ जाएगी। क्या वो इतना बदनसीब है कि इसने बुरा किया था? क्या अम्मी काबिल माफ़ी हैं जो उनकी बद्दुआ अरूसा के हवासों को लौट रही है? क्या इसका हक नहीं बनता था मासूम ज़िंदगी को इंसाफ दे? या अल्लाह, या अल्लाह। इसने धीरे से आंखें मौन कर अपने रब को पुकारा था। करीबी मस्जिद से अज़ान असर की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो अपने रब से दुआएं मांग रहा था। गुलशन आरा ने सारी उम्र इसका मुंह ना देखने की कसम खा ली थी। हर वक्त इसे कोसनों बद्दुआओं से नवाजती रहती थी। अस्पताल में सब एक दूसरे को खामोश नज़रों से तसल्ली देते रहते। वलीद ऑफिस से इधर आता, इधर से ही ऑफिस जाता था। डॉक्टर्स इसकी रिपोर्ट में बेहतरी की नवीद दे रहे थे, मगर इसे होश नहीं आ रहा था। इन्हें शदीद किस्म का सदमा पहुंचा है। जब तक खुद इनके अंदर कुव्वत इरादी पैदा नहीं होगी, ये मुकम्मल होश में नहीं आएंगी। जिनके सबसे ज़्यादा करीब हैं, बस वो इनके पास जाए। डॉक्टर इब्राहिम कह रहे थे। वलीद ने बड़ी आपा की जानिब देखा। नहीं वलीद, तुम जाओ। बड़ी आपा ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं आपा, आप जाइए, आपकी इससे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर के सामने किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी, चुप हो गई। कितने दिन और सरक गए। इसे होश आ रहा था मगर मुकम्मल नहीं। दोनों बहनें गाहे बगाहे इसके पास रहती, इसका हाथ थामे रहती, सहलाती, दबाती, छोटी छोटी प्यारी बातें करती। धीरे धीरे इसके अंदर ज़िंदगी के आसार पैदा होने लगे। इसकी आंखों में पहचान के रंग उतरने लगे।
रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका था और माह मुबारक के साथ साथों में वलीद सदक दिल से इसकी ज़िंदगी सेहत अपने रब से मांग रहा था। और वो नेक लोगों की दुआएं तो ज़रूर सुनता है, बेहतर मुनसिफ है। अरूसा को मुकम्मल होश आ गया। वो ख्वाब ऐसी कैफियत से निकल आई थी, बस चुप चुप सी थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। आप ही क्या मैंने बहुत बुरा किया था? उस रोज़ वो नाइला से पूछ रही थी। नहीं अरूसा, तुम बिल्कुल सही हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। आप ही वलीद नाराज़ है क्या? इसके लहजे में नक्काहत थी। नहीं, घर गया है कपड़े बदलने, वो भी गुमसुम सा है। तुम इससे बात करो, ख़ुद को संभालो और नई ज़िंदगी की इब्तदा करो। बस अरूसा, बहुत दुख झेल लिए, धीरे से इसे प्यार किया। नाइला आप ही फुप्पो, उन्हें तुम भूल जाओ। अजियत पसंद लोगों को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। मैं कहाँ रहूँगी? मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मोहल्ले में कितनी जग हंसाई हुई थी। धीरे से तकिए पर सर पटका। अरूसा ऐसे मत कहो, कोई तुम्हें बुरा नहीं कह रहा। फुप्पो ने अच्छा नहीं किया, पुरानी मोहल्लेदारी है। बरसों से लोग हमें जानते हैं, तुम्हारी नेचर से वाकिफ़ हैं। सब ने फुप्पो को बुरा कहा है। धीरे से इसका हाथ थाम लिया। और सुनो, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ। वलीद की ईद क्यों ख़राब कर रही हो? यकटक आपा को देखे गई। वलीद, जिससे वो निगाह नहीं मिला पा रही, आता है तो सोती बन जाती है, जागते में आता तो निगाह नहीं उठाती। इसने भी इसे बुलाया नहीं था। वो प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। एक दिन आप ही, एक दिन बड़ी आपा रहती थी इसके पास। आप ही, वलीद रात को घर चला जाता है? नहीं तो पहले तो इधर ही कॉरिडोर में नीचे लॉन में हमारे साथ ही रहता था। अब जब से तुम्हें होश आया है, तुम रूम में शिफ्ट हुई हो। इसने रात गुजारने के लिए करीबी होटल में कमरा लिया है। रात को उधर चला जाता है, सुबह ऑफिस इधर से ही जाता है, ऑफिस से आकर रात तक इधर रहता है। नाइला आप भी सेब खिलाते हुए धीरे धीरे बता रही थी। वलीद घर नहीं गया? हैरत से उन्हें देखा। घर वाली इधर हो तो पिया घर कैसे जाए? वलीद ने अंदर आते हुए शायद जुमला सुन लिया था। अरूसा एक टक उसे देखे गई। ऐसे क्या देख रही हो? देखिए आप ही नज़र लगाएगी। पूरे रोज़े रख रहा हूँ, लग रहा हूँ ना नेक बाबा। इसे यूँ बैठे देखकर चहका। इस शख्स को मैंने घर बदरी की सज़ा दी है। ये शख्स अपने घर वालों से दूर रह सकता है क्या? और सिर्फ मेरी खातिर? तुम तो हो ही नेक। फ़ख्र से वलीद को देखा। अरूसा ने भीगी पलकों को झुकाकर निगाह चुरा ली, मगर भीगे रुखसार वलीद की निगाह से पोशीदा नहीं थे। हाँ वलीद, क्या हुआ तुम्हारे? अचानक ही नाइला आपी इसकी जानिब घूमी थी। श खामोशी का इशारा किया। नाइला आपी मुस्कुरा कर उठ गई। इसी वक्त डॉक्टर इब्राहिम और नर्स अंदर आ गए। मेरी छुट्टी कब तक होगी? 1-2 दिन में। मगर 1-2 दिन बाद तो चांद रात है। मिस्टर वलीद का ख्याल है कि मिसेस अरूसा को मुकम्मल सेहतमंद होना चाहिए। इसकी पलकें लरस गईं। अच्छी लड़की, तुम ठीक हो गई हो, बस अपने अंदर मज़ीद ताकत पैदा करो। जी। डॉक्टर कितनी देर तक इससे बातें करते रहे। नर्स ने मेडिसिन दी। इस दौरान में नाइला आपी खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। उन्हें ज़रूरी काम था। डॉक्टर के साथ वलीद भी जाने लगा। धीरे से इसे पुकारा, वलीद। वलीद ने सर घुमाकर देखा और दरवाज़ा लॉक करके पलटा। जाने वलीद। इसकी निगाह का रंग, चेहरे की मुस्कुराहट, अंदाज सब बदल गया था। इसके बेड के करीब ठहरा, खामोशी से इसे देखती रही। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी। चमकता हुआ चांद लग रहा था। नाराज़ हो? मैं? हैरत से अपनी जानिब इशारा किया। क्यों? वलीद ने इसका हाथ थाम लिया। अगर तुम भी नाराज़ हो तो मत होना। हमारा साथ शायद इसी तरह से लिखा था। वलीद तुम? वलीद ने धीरे से इसका हाथ चूम लिया। किसी सोच को अपने जहन में जगह मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सारे दुखों का साथी, सच्चाइयों का अमीन और तुम्हारी हुर्मत का गवाह। कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ इतना। क्या? निगाह उठाई। वलीद शरारत से बहकने के से अंदाज में संभल कर बेड पर गिरा। मेरे बारे में? हमारे घर के बारे में? प्लीज़ वलीद। वलीद ने जानबूझकर बहकने के से अंदाज में उठते हुए शरारत की जसारत कर ली। ओहो, ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मरीज़ा हो। अफसोस, मैं कितना जालिम। प्लीज़। इसने बमुश्किल ख़ुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया। शरारत से हंसता वलीद चेयर पर बैठकर इसको देखता रहा। इसकी आंखों में भी चमक थी। अरूसा महजूब सी हो रही थी। बस अपनी नक्काहत दूर कर लो, मेरा प्यार तुम्हें ताकत दे देगा। प्लीज़ वलीद। हया आलूद मुस्कुराहट से इसे देखा। क्या कहा? वंस मोर। वो बोला तो इसने निगाह चुरा ली। वलीद ने इसे अपनी निगाहों की गिरफ्त में ले लिया। कुछ खाओगी? नहीं। कुछ पियोगी? नहीं।
गहरा सांस लेकर उठा। अरोसा गैर इरादी तौर पर सिमट गई। तुम तो हमारी प्यास बढ़ाकर सैर हो चुकी हो। टेबल से सेब उठाकर साफ किया और खाने लगा। अरोसा सर झुकाकर अपनी हथेलियों को खोलने और बंद करने लगी। वलीद ने इस्तेहकाक आमेज़ अंदाज में इसे देखा। कमज़ोर, नातवां, माथे पर पट्टी बंधी थी, आंखों के नीचे हल्के थे। कितने दुख उठाए हैं इसने मेरी खातिर। वलीद की आंखें भीगने लगी। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम खुद को भूलने लगोगी। धीरे धीरे सेब खाने लगा। आप ही, अब तो मेरी तबीयत ठीक है, छुट्टी ले लें। रोज़ों में आपको परेशानी हो रही है। वलीद ने कहा है कि छुट्टी चांद रात को लेनी है। चांद रात को ही तुम्हारी रुखसती है। वलीद ना अपने घर तुम्हें लेकर जाएगा और ना तुम्हारे घर। वो रुखसत करवा कर अपने फ्लैट पर लेकर जाएगा। ईद के दूसरे दिन इसने वलीमे की दावत का एहतमाम किया है। वलीद ने सब ज़्यादतियों का हिसाब किया है। अरोसा यकटक आप ही को देख रही थी। वलीद कितना सच्चा था। और आप ही लोगों को भूल जाओ, बस अपनी खुशियों पर निगाह रखो। प्यार से माथा चूम कर बाल बांधने लगी। आप ही, फुप्पो, बस इस किस्से को अब ख़त्म समझो। उनका गुस्सा और हसद बिला वजह का था। कुछ लोगों की किस्मत में होता है पराई आग में जलना, और जो माएँ अपने बच्चों की खुशी का एहसास नहीं करती, बिला वजह ज़िद लगा लेती हैं, इसका अंजाम इतना भयानक ही होता है। उन्होंने तुम्हारे साथ कम तो नहीं किया। इसने निगाह चुरा ली। सगी फुप्पो ना सही, फुप्पो तो थी। रूम में खामोशी फैलने लगी। रिश्तों के एहतराम का दौर गुजर चुका है, या फिर शायद झूठी अना, मुनाफ़कत और बुग़्ज़ जैसी खसूसियात इंसान को कहीं का नहीं रखती। इंसान को इतना भी खुदगर्ज़ नहीं होना चाहिए। सबको इसकी मज़लूमियत का एहसास था। वलीद ने जो कहा था कर दिया। पूरा सच्चा पक्का आशिक था। इसकी पसंद के मैरून जलमिलाते लिबास, हल्की सी ज्वेलरी, खुले दराज बालों में जूही की कलियाँ, हल्का हल्का मेकअप और कलाइयों में चूड़ियाँ जो वलीद के साथ साथ चलते हुए धीरे धीरे बज रही थी। हथेलियों पर ताज़ा ताज़ा लगी मेहंदी जो सोख कर झड़ रही थी और हथेलियों को रंगती जा रही थी। चंद सीढ़ियाँ चढ़कर वलीद ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और बिस्मिल्लाह कहकर इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। धीरे से इसका हाथ थामकर अंदर दाखिल हो गया। पीछे पीछे बड़ी आपा, नाइला आपी और हमीद भाई और रियाज भाई थे। वलीद का एक दोस्त सुभान अपनी बेगम के साथ था। 2 कमरों के छोटे से अपार्टमेंट को सुर्ख गुलाबों से डेकोरेट किया गया था। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। वलीद की खुशी देदनी थी। इसके चेहरे पर सजी खुशी का अक्स था तो मुसर्रतों के दिए अरूसा के दिल में भी फरोज़ा हो रहे थे। वलीद, बेडरूम लॉक है, नाइला आपी ने आकर कहा। हाँ, इसकी चाबी जाने कहाँ रख दी है, देख लूँगा। अरूसा की जानिब देखकर मुस्कुराए। मैं ढूंढ दूँ? नहीं, आप कहाँ ढूंढेंगी, मेहमानों की तवाज़ो करें, मैं देखता हूँ। इसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हट रही थी। मेहमानों के जाने तक चाबी नहीं मिली। अब क्या करोगे? नाइला आपी फ़िक्रमंद थी। मास्टर की से खोल लूँगा, शरारत से हंसा। बाहर चांद नज़र आने का शोर हुआ और सबको सुबह ईद की तैयारी के लिए काम याद आने लगे। बड़ी आपा, नाइला आपी ने प्यार किया। हमीद भाई और रियाज भाई ने भाइयों वाला मान दिया। वलीद को अंगूठी, घड़ी और सलामी दी। थोड़ी देर में फ्लैट खाली था। अरूसा तन्हा ड्राइंग रूम में बैठी थी। इसका दिल धक धक कर रहा था। आहट पर सर उठाया। वलीद मोहब्बतों के जाम लुटाता इसे देख रहा था। लाओ, इसने हाथ बढ़ाया। क्या? महल के दरवाजे की चाबी? मखमूर सा लहजा था। नहीं, मेरे पास कहाँ है? ताज्जुब से देखा। तुम्हारे पर्स में। क्या? इसकी शरारत पर हंसी। अच्छा, तो इसलिए हंस रहे थे। पर्स खोला। वलीद ने हंसते हुए चाबी थामकर इसका हाथ भी थामकर उठा लिया। देखो, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मेरा बहुत ख्याल रखना, ध्यान रखना, मुझे तंग मत करना। जो कहूँ मान जाना। वो हंसा और मैं सर घुमाकर इसे देखा। वलीद दरवाज़ा खोलकर इसकी जानिब घूमा। आओ जाने वलीद, तुम्हारे लिए मैं जो हूँ, तुम्हारे तमाम दुखों को समेटने वाला, तुम्हें अल्लाह की रज़ा से खुशियाँ देने वाला, अपनी मोहब्बत में सच्चा और अटल। बोलो, है मेरी मोहब्बत पर एतबार? वो धीरे से झुका। अगर एतबार ना होता तो? इसने धीरे से झुका हुआ सर उठाया। तो कब की इब्रार और खावर की दस्तरस में जा चुकी होती। तुम्हारी मोहब्बत ने वलीद कहीं भटकने नहीं दिया। आस ख़त्म हो गई थी। इंतज़ार था, उम्मीद नहीं थी, मगर मायूसी नहीं हुई थी। तुम्हारे लिए तो इतना बड़ा कदम उठाया था। वो कह रही थी और वो जाम लुटाती निगाहों से देखता सुन रहा था। दोनों की आंखें भीग रही थीं। वलीद ने आलमे बेखुदी में इसे अपने साथ लगा लिया। मेरे बख्त का सितारा, मेरी तमन्ना, मेरी अरूस, मेरी अरूसा।
सुर्ख गुलाबों और मोतिये की कलियों ने उनका इस्तकबाल किया। फूलों की सच्ची और मशहूर कुन खुशबुओं ने स्वागत का रक्स शुरू कर दिया। सुर्ख गुलाबों से सजा इसका बेडरूम हवासों को मदहोश करने के लिए काफ़ी था। दुखों का बाब ख़त्म हो गया। वलीद ने इसके हिनाई हाथों में डायमंड की रिंग पहनाई। चांद रात मुबारक हो, तुम्हें भी। मशहूर सी होकर मुस्काई। वलीद के लिए भीगी, नर्म और चमकीली मुस्कुराहट ही काफ़ी थी। ये नावल तो कंप्लीट हुआ। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।